बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में। जिंदा यीशु की सलामती आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। खुदावन में मेरे अजीज भाइयों और बहनों, पाशका का छठा इतवार और आज पाकिस्तान भर में कलीसिया बाइबल का इतवार मनाती है, पाक कलाम का इतवार। हमें दावत दी जाती है कि हम खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को अपनी ज़िंदगी में अहमियत दें, इस पर गौर करें, इसे अपने ख़ानदानों में खोलें, इसके साथ दुआ करें, इस पर गौर करें और इसका प्रचार करें। आए इस इबादत में शरीक होने से पहले उन वक्तों के लिए खुदा से माफ़ी मांगे जब हमने खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में अहमियत नहीं दी। मैं कादिर मुतलक खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों, नीज़ गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुक़द्दसा मरियम हमेशा कुंवारी, सब फरिश्तों और मुक़द्दसों आप सबसे भी इल्तिमास करता हूँ कि मैं हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। कादिर मुतलक खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे।
ہم دعا کریں۔ اے قادر مطلق خدا، مسیح خداوند مردوں میں سے زندہ ہوا، عنایت کر کے شادمانی کی ان دنوں میں جو رسمیں ہم اس کی عزت میں ادا کرتے ہیں، ان کو عقیدت اور گرم جوشی کے ساتھ ادا کریں، تاکہ ہم اپنی نجات کے سلسلے کے تمام واقعات پر غور کریں اور ان کے مطابق عملی طور پر اپنی زندگیاں گزاریں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا۔ آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال سے لی گئی ہے، اس کا 8واں باب، آیات 5 تا 8 اور 14 تا 17۔ اس وقت فیلبس سامریا کے ایک شہر میں جا کر لوگوں میں المسیح کی منادی کرنے لگا، اور ان کرشموں کو سن کر اور دیکھ کر جو فیلبس دکھاتا تھا، لوگ اس کی باتوں پر بالا اتفاق متوجہ ہوئے، کیونکہ بطیروں میں سے جن میں ناپاک روحیں تھیں وہ بڑی آواز سے چلا کر نکل گئیں، اور بہت سے مفلوج اور لنگڑے شفا یاب ہوئے۔ اس لیے اس شہر میں بڑی خوشی تھی۔ جب رسولوں نے جو یروشلم میں تھے سنا کہ سامریوں نے خدا کا کلام قبول کر لیا ہے، تو انہوں نے پطرس اور یوحنا کو ان کے پاس بھیجا۔ جب وہ پہنچے تو انہوں نے ان کے لیے دعا کی کہ روح القدس پائیں، کیونکہ وہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نہ ہوا تھا، لیکن انہوں نے صرف خداوند یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ پایا تھا۔ تب انہوں نے ان پر ہاتھ رکھے اور انہوں نے روح القدس پایا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور جماعتی جواب ہے: اے کل ممالک، خدا کے لیے خوشی کا نعرہ مارو۔ اے کل مبارک، خدا کے لیے خوشی کا نعرہ مارو۔ اس کے نام کے جلال کا گیت گاؤ، اس کے لیے ایک شاندار ترانہ حمد پیش کرو۔ خدا سے کہو کہ تیرے کام کیا ہی محیب ہیں۔ جماعتی جواب: اے کل ممالک، خدا کے لیے خوشی کا نعرہ مارو۔ تمام زمین تجھے سجدہ کرے اور تیرا گیت گائے، تیرے نام کا گیت گائے۔ آ کر خدا کے کاموں کو دیکھو، بنی نوع انسان کے درمیان اس نے محیب کام کیے ہیں۔ جماعتی جواب: اے کل ممالک، خدا کے لیے خوشی کا نعرہ مارو۔ اس نے سمندر کو خشکی بنا دیا، انہوں نے دریا کو پیدل عبور کیا۔ اس لیے آؤ ہم اس میں خوشی منائیں، وہ اپنی قدرت سے ابد تک حکمران ہے۔ جماعتی جواب: اے کل ممالک، خدا کے لیے خوشی کا نعرہ مارو۔ تم سب جو خدا سے ڈرتے ہو کر سنو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس نے تمہارے لیے کیا 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 ہے۔ خدا مبارک ہو جس نے نہ تو میری دعا کو رد کیا اور نہ اپنی شفقت ہی کو مجھ سے باز رکھا۔
जमायती जवाब, ऐ कुल ममालिक खुदा के लिए खुशी का नारा मारो। आज की दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का पहला ख़त 3 बाब 15 से 18 आयत तक। अज़ीज़ों, खुदावंद मसीह को अपने दिलों में मुक़द्दस समझो, और जो कोई तुमसे इस उम्मीद की दलील पूछे जो तुम में है, तो उसे जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहो, मगर ये फ़रोतनी और खौफ के साथ हो। नीयत नेक रखो, ताकि वो जो तुम्हें बदकार जानकर तुमको बुरा कहते और तुम्हारे मसीह नेक चाल चलन पर लान तान करते हैं, शर्मिंदा हों। क्योंकि अगर खुदा की मर्ज़ी यूं ही हो तो नेकी करने के सबब से दुख उठाना बदी करने के सबब से दुख उठाने से बेहतर है। इसलिए मसीह भी एक बार गुनाहों के वास्ते मर गया, यानी रास्तबाज ना रास्तों के लिए, ताकि तुमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म में तो मर गया, लेकिन रूह में ज़िंदा किया गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। नारे हम के लिए प्लीज़ सब खड़े हो जाएं। यीशु ने कहा, अगर कोई मुझे प्यार करता है तो मेरे कलाम पर अमल करेगा, और मेरा बाप भी उसे प्यार करेगा, और हम उसके पास आएंगे। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। यीशु मसीह की खुशखबरी मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरे हुक्म मानो, और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा और वो तुम्हें दूसरा वकील बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूहुल हक, जिसे दुनिया पा नहीं सकती, क्योंकि ना उसे देखती है और ना उसे जानती है, लेकिन तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊँगा। अभी थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, लेकिन तुम मुझे देखते रहोगे, चूँकि मैं जिंदा हूँ और तुम भी जिंदा रहोगे। उस रोज़ तुम जानोगे कि मैं अपने बाप के पास हूँ और तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। जिसके पास मेरे हुक्म हैं वो उन्हें मानता है, वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है वो मेरे
बाप का प्यारा होगा और मैं उसे प्यार करूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। अंजील जलील के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावन में मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, आज जब पाक माँ कलीसिया पाशका का छठा इतवार मनाती है, पाकिस्तान की कैथलिक कलीसिया एक खास पैगाम पर हमारी तवज्जो करना चाहती है और वो है पाक कलाम बाइबल मुक़द्दस का इतवार। जिंदा कलाम। आज की तलावतें भी हालांकि पाशका के छठे इतवार की तलावतें हैं, लेकिन इन तलावतों में खुदावंद हमें एक खास बात की तरफ हमारा ध्यान करना चाहता है, ताकि हम सोचने पर मजबूर हों कि वाकई हम जिंदा यीशु के शागिर्द हैं या नहीं। तो सबसे पहली बात, हम क्यों बाइबल का इतवार मनाते हैं? क्या एक और दिन जब एक कोई वैरायटी आइटम पेश किया जाए कि चलो साल के दौरान कुछ हो, सब गौर करें, चलो जी कुछ ना कुछ हो अच्छा? नहीं, लेकिन इसलिए ताकि हम अपने आप को सवाल करें, सोचें इस बात पर, क्या मैं वाकई खुदा के इस कलाम को जानता हूं, समझता हूं, इस पर गौर करता हूं, इसके साथ दुआ करता हूं और सबसे बढ़कर इस पर अमल करता हूं या नहीं? और मेरे अजीजों, आज जब हम पाशका का छठा इतवार मनाते हैं, आज की दूसरी तलावत इस पैगाम को, इस सबक को समझने के लिए पतरस हमसे एक बहुत अहम और खास बात करता है। पतरस कहता है, अजीजों, खुदावंद मसीह को अपने दिलों में मुकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे इस उम्मीद की दलील पूछे जो तुम में है, तो उसे जवाब देने से के लिए हमेशा तैयार रहो। पतरस इस बात को सिर्फ हमारे लिए सबक नहीं कि समझो कलाम को, बपतिस्मा याफ्ता लोग तैयार रहो, नहीं, लेकिन जो कोई बपतिस्मा याफ्ता है, जो कोई ईमानदार है, वो कलाम को, वो यीशु के कलाम को अपनी जिंदगी में उतारे, समझे, दुआ करे, इस पर अमल करने वाले बने। और अगर तुम वैसे मसीह हो तो फिर तुम में वो खुशी जाहिर होगी, तुम्हारी जिंदगी से ये बात नुमाया होगी कि दूसरे देखेंगे कि वाकई इस बंदे में, इस बंदी में फर्क है। और वो क्या फर्क है? और जब कोई तुझसे पूछे, तुमसे जानना चाहे कि तुम्हारी ये खुशी कहां से आती है, तो पतरस कहता है
اسے جواب دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہو۔ وہ جواب کہاں سے آئے گا؟ اگر ہم سے کوئی پوچھنا چاہتا ہے کہ تم میں یسوع ہے، کیسے جانتے ہو، کیوں، تو کیا جواب ہے ہمارا؟ اور پطرس کہتا ہے تیار رہو فخر کے ساتھ، خوشی کے ساتھ بتانے کے لیے۔ اور پطرس کہتا ہے یہ کلام سے، خدا کے پاک کلام پر غور کرنے، پڑھنے، اس پر عمل کرنے والے بننے سے آتا ہے۔ اور وہاں سے ہمیں یہ جرأت ملتی ہے کہ ہم خدا کی بشارت کریں فخر کے ساتھ، ڈر کے ساتھ نہیں۔ اور پھر دوسری بات بہت اہم، مگر یہ فروتنی اور خوف کے ساتھ ہو۔ فروتنی یہ نہیں کہ ہم اس لیے کسی سے بات چیت کرتے ہیں تاکہ ہم ان کے منہ پھٹ جواب دیں، یہ مقصد نہیں ہے پطرس کا کہ ہم بحث بازی کریں کلام پر، نا 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 نا، بالکل یہ مقصد نہیں۔ چلو جی موقع مل گیا، اب اسے بھی ہم سنائیں، ہم بتائیں کہ ہم یہ بھی کرنے والے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں۔ پطرس کہتا ہے فروتنی کے ساتھ، حلیمی کے ساتھ، تاکہ واقعی یسوع کا پرچار ہو، اس یسوع کا پرچار جس نے اپنی زندگی صلیب پر دی۔ آج کی پہلی تلاوت میں ہم رسولوں کے اعمال میں وہ حصہ پڑھتے ہیں جہاں فیلبوس سامریا کے گاؤں میں جاتا ہے اور لوگوں کے درمیان مسیح کی منادی کرتا ہے، اور لکھا ہے کہ لوگوں نے ان کی باتوں کو سن کر اس شہر میں، سامریا کے شہر میں بڑی خوشی ہو گئی، کلام کے نسبت بڑی خوشی، کیونکہ فیلبوس نے خدا کا کلام پھیلایا حلیمی کے ساتھ۔ اس کلام کے ساتھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر دعا کی، خدا کا کلام انہیں سنایا، خدا کا کلام ان کے درمیان میں رکھ کر دعا کی، اور وہاں لوگوں کو حقیقی خوشی حاصل ہوئی۔ اس لیے پاک ماں کلیسیا ہمیں یہ اتوار منانے دیتی ہے، پاک کلام کا اتوار، کہ ہم ایک بار پھر اپنی ذمہ داری پر غور کریں کہ ہم کاہن یا مذہبی رہنما یا بپتسمہ یافتہ ہوتے ہوئے پاک کلام کو اپنی زندگی میں کتنی اہمیت، کتنی ترجیح دیتے ہیں۔ کیا ہم اس کا پرچار اپنے بہن بھائیوں کے درمیان کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کیونکہ ہم بحث بازی کرنا چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کیونکہ ہم دوسروں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں، لیکن اس لیے کیونکہ یہ خدا کا زندہ کلام ہے، یہ ہماری زندگی کو روشنی عطا کرتا ہے، ہماری تاریکی میں ہمیں اجالا دیتا ہے، ہماری تاریکی میں، چاہے وہ اس وقت کی تاریکی ہو جو ہمیں پریشانی میں مبتلا کرتے ہیں، کیونکہ ہم سب اس وقت اس وبا میں ہیں جہاں ہم سنتے ہیں کتنے لوگ مر چکے ہیں، بیمار ہیں۔ ایسے حالات میں
हमारे घरेलू परेशानियों के दरमियान में, दुख और तकलीफ के दरमियान में कलाम, खुदा का कलाम हमें हकीकी ग़िज़ा देता है। खुदा बाप का तसल्ली बख्श पैगाम देता है। और इसलिए मेरे अजीज भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, कलीसिया में दावत देती है कि हम इस कलाम पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करें, ताकि इस कलाम को रोज़ बरोज़ अपने ख़ानदानों में, अपनी जमायतों में खोलें, पढ़ें। इसकी तालीम दूसरों को दें। कैथलिक कलीसिया तालीम की कलीसिया, एक ऐसी कलीसिया नहीं कि बस उठ के हम गीत और दुआ करते हैं, लेकिन तालीम पर अकीदा है हमारा। ये रसूलों का अकीदा जो हम पढ़ते हैं, ये कलाम के बातों पर अमल करना सिखाता है। दुआ करें कि इस छठे इतवार के दौरान, इस हफ्ते में पाक कलाम पर गौर करें, पाक कलाम पर दुआ करें, इसके पैगाम को लेकर गौर करना सीखें और सबसे बढ़कर पाक कलाम का प्रचार करें अपनी जिंदगियों से और अपने कलाम से, ताकि जहाँ कहीं जाएं हम इसकी खुशी की बिशारत जो अपने अंदर महसूस करते हैं, हम दूसरों तक पहुँचा सकें, मसीह खुदावन के वसीले से। आइए हम अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ और उनके बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है, और उस कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, उसने 35 पिलातुस के ऐद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का मुझे बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से जिंदा और मुर्दों के दाला लेने आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक करके कलीसिया, मुकद्दस शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। अजीज़ों, हम खुदा कादिर मुतलक बाप से, उसके बेटे यीशु मसीह के वसीले से अब दुआ मांगे और अपनी इल्तिजाएं दुआएं खुदावंद के हज़ूर में पेश करें। हम दुआ करें कि जी उठा मसीहा आलमगीर कलीसिया को ईमान की मजबूती अता करे, ताकि मोमिनीन रूह कुदस के फलों को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बना लें। अजीज़ों, दुआ करें। ऐ खुदावंद, हमारी दुआ सुन। कि आसमानी बाप, पापा आदम फ्रांसिस, तमाम बिशप साहिबान
कहन बरादरी, सिस्टर साहबात और मुबशरान अंजील को रूल कुदस की ममूरियत अता करे, ताकि वे इन मुश्किल हालात में भी कलीसिया की रूहानी नशोनुमा और खुदा की पनाह में रहते रहें। अजीज़ो दुआ करें। हमारी दुआ सुन। प्यारा खुदावंद, आज कलाम मुक़द्दस के इतवार के मौके पर हमें भी फजल बख्शे, ताकि हम कलाम मुक़द्दस को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बनाकर उसी को मुताबिक अपनी ज़िंदगियां बसर करें। अजीज़ो दुआ करें खुदा हमारी दुआ सुन। कि रहीम खुदा तमाम बीमारों को, ख़ास तौर पर कोरोना वायरस के मुतासरीन पर रहम की निगाह करे और उन्हें शिफा बख्शे। अजीज़ो दुआ करें खुदा हमारी दुआ सुन। कि कदूस बाप उन तमाम अफराद और अदारों को बरक़ात व फ़ज़ाइल से मालामाल करे जो कलाम मुक़द्दस की इशाअत के लिए अपनी खिदमत सरअंजाम देते रहे हैं। अजीज़ो दुआ करें खुदा हमारी दुआ सुन। कि अमन का शहज़ादा तमाम दुनिया, बिलखुसूस हमारे ख़ानदानों में अमन व मोहब्बत की फरमानी को कायम करे। अजीज़ो दुआ करें खुदा हमारी दुआ सुन। ए मेहरबान खुदा, हमारी पनाह और ताकत और तमाम शफ़क़त के सरचश्मे, जो दुआएं तेरी कलीसिया अक़ीदत और इस्तक़लाल के साथ मांगती है, तो इन्हें कबूल फरमा और बख्श दे कि इनका असर हम तक पहुँचे, मसीह खुदावन के वसीले से। आमीन। या खुदा नज़र
तो दुआ करें कि हमारी कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हजूर में मकबूल हो। खुदावंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से और अपने नाम की बड़ाई के लिए और हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फ़ायदे के लिए मंजूर फरमाए। ए खुदावंद खुदा, इनायत कर कि पेश किए हुए नजरानों के साथ हमारी दुआएं भी तेरे हजूर में पहुँचें, ताकि हम तेरी मेहरबानी से पाकीज़ा होकर और तेरी बड़ी शफ़क़त की बेशकीमत नेमतें पाकर इनके मुवाफिक चलें, मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और निहायत मुनासिब है क़ुद्दूस बाप कि हम हर वक्त लेकिन ख़ास कर इन दिनों में तेरी सिताइश करें, जब मसीह हमारा फ़िसा कुर्बान हुआ। उसी के ज़रिए नूर के फ़र्जंद हमेशा की ज़िंदगी की तरफ बढ़ते हैं और अहले ईमान की खातिर आसमानी बादशाह की बारगाहें खुल गई हैं। उसके मरने से हमारी मौत नहीं रही और उसके जी उठने में सबकी ज़िंदगी बहाल की गई। इसलिए हम पाशका की खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों के लश्कर मुक़द्दसों की जमायत समेत ये कहते हुए फिर हम तेरी हम्द व सना करते हैं। ए मेहरबान बाप, तू वाकई कद्दूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबारक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी ऐद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे
बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों के माफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही क्या करो। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, हमारे ईमान का भेद। जितनी बारी लेते ये पैमाना है, जितनी बारी पीते जितनी बार लेते ये पैमाना है, जितनी बारी पीते है तेरी मौत का इज़हार करते खुदावंदा के जब तक तू ना आए। बस है बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हुए हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप जोसेफ कूट्स और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाइयों और बहनों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीस तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कमवारी मरियम और उसके नहायत पाक शोहर मुबारक यूसुफ, मुबारक रसूलों और उन सब मुकद्दसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्द व सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर मुतलक खुदा बाप को रूह कुदस की वादानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शाह है, हमेशा से हमेशा तक। हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें कि उस खुदावन ने हमें सिखाया है। ए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तुम हमारे कर्ज हमें बख्श और हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ए खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। ए खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नज़र कर और उसे वो सलामती इताहत बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। खुदावंद यीशु की सलामती आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। उठाने
अजीजो, यह है खुदा का बर्रा, खुदा का जिंदा कलाम जो दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो इस बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ कह दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी। वो तमाम लोग जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं और हमारे साथ इस पाक मास में शिरकत कर रहे हैं, रूहानी पाक शराकत का अमल मेरे साथ दोहरा सकते हैं। ऐ मेरे प्यारे यीशु, मेरा ईमान है कि तू यूकरिस्ट के पाक साक्रामेंट में हासिल है। मैं तुझे हर चीज़ से बढ़कर प्यार करता हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि तुझे रूह में हासिल करूँ। चूँकि इस वक्त मैं साक्रामेंटी तौर से तुझे हासिल नहीं कर सकता, इसीलिए तू रूहानी तौर पर मेरे दिल में आ। मैं तुझे गले लगाता हूँ यूँ जैसे तू मेरे यहाँ आ चुका हो, और दिल और जान से तेरे साथ मुत्तहिद होता हूँ। अता कर कि मैं तुझसे कभी जुदा ना हूँ। आमीन। हम दुआ करें। ए कादिर मुतलक और अब्दी खुदा, तो मसीह के जी उठने के ज़रिए हमेशा की ज़िंदगी के लिए हमें बहाल कर देता है। हम में हमारे खुदावंद के मरने और फिर ज़िंदा होने का फल पैदा कर और हमारे बातनों में आसमान की निजात बख्श गज़ा की ताकत भर दे, मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। कादिर मुतलक खुदा, बाप
और बेटे और रूल कुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। आमीन। इबादत हो चुकी, खुशी और सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो।